Hi everyone. So today we are going to start our next topic from geography. And the topic is physical features of India. But before starting that topic, let me set the background or let's have an introduction of the very important topic, that is the continental drift theory or the theory of continental drift. So now you can see on the map of the world, it has been divided into 7 different plates or 7 different continents. These are called plates and they are moving in different directions from each other. So the present day, the map we see or the different continents we see on the map, it was not there right from the beginning like this. शुरू से बिल्कुल ऐसा ही ये नहीं था. These 7 plates are moving in different directions and these are called plate tectonics. Plate tectonics. These are of 3 kinds. Suppose these are 2 plates of land. They can move towards each other. They may strike. एक बार एक दूसरे की तरफ जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे. क्या होगा? या तो वो फोल्ड हो जाएंगे ऐसे. दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट. एक दूसरे से टकरा के फोल्ड हो जाती हैं तो कन्वर्जेंट हो जाएंगी. सेकंड हो सकता है कि आपस में टकरा के दूर चली जा सकती हैं, टकराएंगी और दूर डिफरेंट डायरेक्शन चलेगी. दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट. एंड थर्ड वन में बी दे मे ट्रांसफॉर्म द बाउंड्रीज. एक दूसरे के साथ ऐसे फ्रैक्शन करेंगी और बाउंड्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, फॉर्म चेंज कर देंगी. तो 3 टाइप्स वी हैव. कन्वर्जेंट, दे मे फोल्ड. सेकेंड वन इज टकराने के बाद दूर जा सकती हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट. And the last one is they may transform the boundaries of each other. So that is plate tectonic. So the map of world today we see, it was not there right from the beginning like this. शुरू से ऐसा ही नहीं था ये. Earlier what was there? There was a supercontinent called Pangaea. This was the supercontinent. सभी कॉन्टिनेंट्स जो है पहले जुड़े हुए थे एक दूसरे से. सुपर कॉन्टिनेंट इट वाज कॉल्ड एंड द नेम वाज पेंजिया एंड इट वाज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी दैट वाज कॉल्ड पैंथालासा. सुपर कॉन्टिनेंट वाज देयर, इट्स नेम वाज पेंजिया एंड इट वाज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी एंड इट्स नेम वाज पैंथालासा. अर्लियर अप्रोक्सीमेटली इट वाज अबाउट 225 million years ago. So plate tectonics took place there and the northern part it was called Laurasia. Southern part was called Gondwana land. So it was divided into 2 parts. The northern part was called Laurasia, the down part was called Gondwana land. So India was part of Gondwana land here, attached with Australia. Then downside we had Antarctica, this side we have Africa and then South America. So ये सभी पहले सभी जुड़े हुए थे यहाँ पर. अफ्रीका, South America, Africa, India, it was attached to Australia and Antarctica. They all were joined. And this theory it was given by Alfred Wegener. Alfred Wegener and it was given in 1912. It was given in 1912. Then he published a book in 1915. In his book he gave all these theories, but at that time these things were not accepted by all the scientists or the geologists, you can say. So earlier what was there? Giant continent was there, its name was Pangaea. So India was a part of Australia. So what happened there? After some time or after some years, India started drifting towards the north. नॉर्थ की तरफ इंडिया ने जो है बढ़ना शुरू किया, ड्रिफ्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो है अलग हो गए हैं. नॉर्थ अमेरिका इधर चला गया है, साउथ अमेरिका इधर अलग हो गया है और ये बीच में है. तो अर्लियर व्हाट वाज देयर? बीच में एक सागर होता था, टीथिस सी. इट वाज देयर टीथिस सी. जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया है, यहाँ पर एक टीथिस सी था. सो वहां से जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ इंडिया बढ़ता चला गया और टीथिस सी जो है साइड में डिवाइड हो गया. राइट नाउ दिस इज नोन एज अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. ये वहीं से बना है और इंडिया जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया है,
सो हिमालयाज जो है, इंडिया कौन सी वाली, जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर थी, जो हमने पढ़ा लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड वाले, उस पर जाके जब टकराया तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, फोल्ड होता शुरू हो गया, और वहां से क्या हुआ, हिमालयाज का निर्माण हुआ है। हमने पढ़ा है कि कन्वर्जेंट हो सकते हैं, डाइवर्जेंट, तो कन्वर्ज होनी शुरू हुई और हिमालयाज का निर्माण होना शुरू हुआ वहां से। सो हिमालय जैसे बने हैं, दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मीन्स जब हम किसी चीज को ऐसे एक दूसरे की तरफ करेंगे तो फोल्ड होना ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है, तो हिमालय जैसे बने हैं सभी। अब इस थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में हमारे दिया था, बट उस टाइम पे बहुत से जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु उसने इसके फेवर में ये दिखाने के लिए कि सभी जो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक थियोरी दी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। ये थियोरी उनके द्वारा हमें दी गई थी। सो उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए दैट अर्लियर देयर वाज अ जायंट कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंसिया, ही गेव अस सम प्रूफ्स। उन्होंने हमें कुछ प्रूफ दिए हैं, और प्रूफ के अकॉर्डिंग हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या उन्होंने हमें एविडेंसेस और प्रूफ्स दिए हैं। सो फर्स्ट प्रूफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, इट वाज द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और द अदर थिंग इज जिगसा फिट। जिगसा क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कार्डबोर्ड हमारे पास होते हैं, इस तरह का बनाए या कुछ भी हो सकता है हमारे पास, हम इनको देखें तो एक तरफ एक दूसरे के साथ ये फिट हो सकती हैं इसके अंदर आगे, या डाउन साइड हम इसको लगाएं, जैसे हमारे पास कार्डबोर्ड होते हैं, कुछ एक गेम होता है हमारे पास, एक दूसरे के अंदर जो फिट हो जाती है, वो उन्होंने दी हमें थियोरी जिगसा फिट। अब यहां से हम देखें, यदि साउथ अमेरिका का ये पार्ट और अफ्रीका का ये पार्ट, यदि हम इनको क्लोज लेके आए तो एक दूसरे में ये फिट हो सकते हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के पार्ट है, दोनों को एक दूसरे क्लोज लेके आए तो ये फिट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। सेकंड वाज द रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अब रॉक्स जो होते हैं उनकी एज का कैसे हम पता लगाते हैं, हमारे पास एक रॉक मैट्रिक डेटिंग होती है, उसके द्वारा हम उसकी एज का पता लगाते हैं। तो यहां पर ये जो पता लगाया गया उसके द्वारा, ब्राजील वाले इस पार्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं, अफ्रीका वाले इस पार्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं, उनकी लगभग फॉर्मेशन सेम है। इधर हमारा जो एप्लेसियन प्लेटू है इसके वाले, और स्कॉटलैंड के इस पार्ट में जो रॉक फॉर्मेशन है लगभग सेम है। सो दिस वाज द सेकंड एविडेंस गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट वन वाज टिलाइट। टिलाइट्स आर व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, उनके डिपॉजिट्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं टिलाइट्स। सो हमें पता है कि ये सारे पार्ट्स एक ही थे। इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। यहां पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर वाला पार्ट है, इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का और अंटार्कटिका, इनके अंदर जो डिपॉजिट्स है टिलाइट्स हैं वो लगभग सेम फॉर्मेशन के हैं। सो दिस वाज द थर्ड एविडेंस। नेक्स्ट वन इज प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स मींस द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है, यहां पर ब्राजील में गोल्ड माइंस पाई जाती हैं, और सेम यहां पर घाना कंट्री है, वहां पर भी सेम लगभग डिपॉजिट्स पाए जाते हैं गोल्ड के। दिस वाज द फोर्थ एविडेंस that they were once a part of the same continent. The next evidence given was distribution of fossils. Fossils हमारे क्या होते हैं, जीव जंतु वगैरह जो है, फिर एनिमल्स या प्लांट्स के जो अवशेष बच जाते हैं उनको बोलते हैं। सो फोसिल्स के बारे में एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें दिया गया लेमूर का। लेमूर एक एनिमल हमारा है जो कि मेडागास्कर में भी उसके फोसिल्स मिले हैं और इंडिया के अंदर भी मिले हैं। सो इट शोज दैट इंडिया एंड मेडागास्कर दे वर वंस अ पार्ट ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट। And another example is of Mesosaurus. This was a reptile kind of species. So it was found there Brazil और साउथ जो अफ्रीका का सदर्न पार्ट है और साउथ अमेरिका है, इसमें लगभग सेम उनके फॉसिल्स जो है पाए गए हैं मेसोसोरस के। So these were the evidences given by Alfred Wegener to prove his theory. Later on in 1960 it was accepted ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। बट अल्फ्रेड वेगनर वाज नॉट देयर टू सी दिस अचीवमेंट बिकॉज ही डाइड इन 1930 एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 वर्ष की उम्र में ही उनकी जो है डेथ हो गई थी 1930 में। एंड ही वॉज ऑन एन एक्सपीडिशन टू द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे एक्सपीडिशन पे गए हुए थे साइंटिफिक अपनी रिसर्च करने के लिए, वहां पर जाके उनकी डेथ हो गई है, तो वो अपनी अचीवमेंट्स को नहीं देख पाए। उस टाइम पे साइंटिस्ट ने उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि साइंटिस्ट को लगा कि शायद सही नहीं है। बट लेटर ऑन इन 1960s दिस थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको जो है मान लिया गया था। सो दिस वाज द बैकग्राउंड सेटअप कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। अब धीरे धीरे जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स बन रही हैं हमारी, लाइक इंडिया में आप देखेंगे माउंटेन्स हैं, हिमालयाज माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इंडियन डिजर्ट है, पेनिनसुला, डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट और कोस्टल एरिया और हमारे जो आइलैंड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स आर देयर इन इंडिया। तो वन बाय वन हम उनको अगले वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।